Yes, sir. Okay, students, we already started solving this exercise. Which exercise is this? 3.1 or 3.3 na? Of NCERT exemplar. And that fourth question I have given in homework. We'll start solving this question number 5. In this question number 5, without plotting the points, indicate the quadrant in which they will lie. First one, ordinate is 5. Ordinate means what? The value of x or the value of Y axis. yeah. तो यहाँ पे जो इसका कोऑर्डिनेट होगा दैट विल बी व्हाट -3, 5. ये कौन से क्वाड्रेंट में आएगा? Second. या इट विल कम इन सेकंड क्वाड्रेंट. इसमें तो कोई कंफ्यूजन होना नहीं चाहिए मेरे ख्याल से. देन एब्सिसा इज -5. इट इज -5, -3. कौन से क्वाड्रेंट में आएगा? Third. थर्ड क्वाड्रेंट. Then -5, 3. Second. Second. And last 3, 5. ये फर्स्ट में आएगा. बोथ आर पॉजिटिव. First. या इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन है तो बोलिए आप लोग. मुझे नहीं लगता इसमें कोई कंफ्यूजन होगा. Is it clear to everyone? Solutions of first, second, third, fourth. Yes, sir. लिख भी लिया होगा आप लोगों ने. इरेज करके चलो नेक्स्ट पे 6 वाले पे. No, sir, 1 minute. ओके ओके. Now moving to the question number 6. In this sixth one, you have given this figure 3.6. 3.6 figure दिया है. Figure, I think it is visible on your screen. The question is what? LM is a line parallel to y-axis. There is a line LM. सबको LM line दिख रही है? मुझे तो दिख रहा है. ये LM line जो है वो parallel है किसके? Y-axis के. And it is at distance of 3 unit. मतलब यहाँ से यहाँ तक की distance 3 है. मतलब ये x की value यहाँ पे 3 है. Then you have to answer the following question. What will be the coordinates of point P, R and Q? तो P का coordinate क्या होगा? ये 3 हो गया. X की value 3 and Y की value how much? 2. 2. And what will be the value of this R? R का क्या होगा? 3, 0. 0. 0 ना? Yes, sir. What will be the value of this Q? 3, 1, -1. यहाँ पे लिख is 3, 2. R is 3, 0. And Q is 3, -1. Any confusion? Similarly, what is the difference between the abscissa of the L? L का जो abscissa है, पहले तो L का coordinate लिख लेते हैं. L का coordinate होगा क्या? 3, 4 ना? 4. And Yes, sir. the coordinate of M. M का क्या होगा? M कहाँ है? 3, -. 3, Yes, sir. Sorry. 3, -3. हाँ दिखा. अब इसमें क्या बोला है? L का abscissa. तो abscissa of L is what? Abscissa of L. L का abscissa 3. And ordinate of नहीं L का ही abscissa चाहिए. And abscissa of M. 3. abscissa of M. वो भी 3 होगा. तो इसका डिफरेंस बोला है. तो डिफरेंस विल बी 0 ना? Yes, sir. is equals to 3 - 3 and that is equals to 0. You have to write in this way. इस तरह से आपको स्टेटमेंट लिख के बताना है. Just write it now. Moving to the question number 7. In the 7th one, you are supposed to find. Just a minute. You are supposed to find in which quadrant or on which axis does the following point lie. कौन से quadrant में या कौन से axis पे ये आएगा, मतलब lie करेगा. तो -3, 5 कहाँ पे आएगा? सेकेंड क्वाड्रेंट ना? बोलिए. Yes. ये सेकेंड क्वाड्रेंट आ जाएगा. देन सेकेंड 4, -1. 4, -1. Fourth. Fourth quadrant. 4th. Right. Then what about this third one? 2, 0.
X-axis. X axis की Y axis? X-axis. X-axis. Okay, X axis. Then 2,2. First quadrant. Very good. First quadrant. ज्यादातर तो क्वेश्चन यही है कि कौन से क्वाड्रेंट में आता है ये. Then -3, Third. -6. Third. Third quadrant. Very good. Third quadrant. चलो हो गया ये. अब 8th में भी वही पूछा है. Which of the following point lie on y axis? कौन से पॉइंट y axis के ऊपर होंगे वो आपको लिखने हैं. तो y axis पे होंगे मतलब E, x D, E, and G. की वैल्यू 0 जहाँ पे होगी तो c में 0 है तो c का मतलब 0,1. दूसरा क्या होगा? D. EB होगा 0,0. EB होगा 0,-1. फिर G होगा 0,5. बस. These are the points. These points lies on which axis? Y axis. क्लियर है सबको? किसी को कोई कंफ्यूजन है? सॉल्यूशन ऑफ दिस 8th one. Solution number 8 is clear to everyone, and this question number 9 is homework. Plot the points given by the following table. Use scale 1 centimeter is equals to 0.2 centimeter. मतलब जो 1 centimeter होगा वहाँ पे हम 0.25 लिखेंगे. 2 centimeter को 0.50, 3 centimeter को 0.75, and similarly 4 centimeter को 1, फिर 1.25, 1.50, 1.75, 2. इस तरह से आप रिप्रेजेंट करके ये कर लोगे कि नहीं कर लोगे? क्वेश्चन नंबर 9. Yes, sir. Try to solve Yes, sir. number 9. So we will do. So question number 9 is homework. Shall I erase this one? Solution of 7 and 8. So that we will move to No, the. sir, wait. Yes. Just write it. Okay, now move to the question number 10. 9 is homework. Question number 10. The point lies on x-axis. वो पॉइंट x एक्सिस के ऊपर है, इसका मतलब y की वैल्यू 0 होगा. एंड द डिस्टेंस ऑफ 7 यूनिट फ्रॉम y एक्सिस. y एक्सिस से उसकी डिस्टेंस कितनी है? 7 यूनिट. व्हाट विल बी द कोऑर्डिनेट? उसका कोऑर्डिनेट क्या होगा? यस, एनीवन? 7,0. So coordinate will be 7,0. First answer is 7,0. What will be the coordinates if it lies on y axis? यदि y axis के ऊपर होगा and it is -7 unit from x axis, so it is 0, -7. Seven. हाँ, इसमें जो पहला क्वेश्चन है उसका आंसर है 7,0 and the second one is 0, -7. Is it clear to everyone? Then question number 11. Find the coordinates of the point which lies on x-axis and y-axis both. तो ऐसा तो एक ही पॉइंट है जो दोनों एक्सिस पे आता है. 0, 0. 0,1. 0,0 that is the origin. इसको आप origin भी बोल सकते हो, ठीक है? Then whose ordinate is -4 and lies on y-axis. Ordinate is -4 and lies on y-axis means 0, -4. Yes. Exercise 5 and which lies on y-axis. So 5,0. 5 comma. Correct? ये लास्ट वाला आप खुद से करना है. अभी कर लो. Okay, students, now move to the exercise number 3.4. That is the last exercise of this NCERT exemplar. In this one, first one, points A, that is 5,3, and point B, that is -2,3, and D are the three vertices of a square ABCD. ये क्या बोलते हैं, स्क्वायर के 3 वर्टाइसेस आपको दिए हैं. आपको क्या करना है? 4th वर्टेक्स फाइंड करना है. तो इसको तो बिना प्लॉट किए आपको पता नहीं चलेगा. तो आई एम गोइंग टू प्लॉट दिस हियर. यहाँ पे मैं प्लॉट करके आपको दिखाता हूँ कैसे करना है. फर्स्ट ऑफ ऑल यू आर सपोज टू ड्रॉ द एक्सिस, x एक्सिस एंड y एक्सिस. ये हमारा y एक्सिस हो गया. And suppose this one is x-axis. Now we are going to plot these points here.
This is solution number 1. X का मैक्सिमम पॉइंट जो भी है कितना है, आई थिंक 5 है, 5 से ज्यादा तो नहीं है. 1 2 3 4 और ये 5, और इसी तरह से यहाँ पे भी 5 ले लेते हैं. 1 2 3 4 5 -5 -4 -3 -2 -1, and upside is 1 2 3 4 and 5. Similarly, left side -1 -2 -3 -4 and -5, right? अब 1 by 1 इसको प्लॉट कर देते हैं. चेंज द कलर. 5,3 5,3 will come here. 5,3 कहाँ पे आएगा? यहाँ पे आएगा. 5,3 A. 5,3. Then second coordinate is -2,3. -2,3 will come here. -2,3. This is B. -2,3. Then C. Sir, -2,3. +3 है क्या? Sorry, then it is wrong. +3 है तो ये नहीं आएगा, ऊपर आएगा. -2,3 will come this side, right? You are correct. मैंने -3 ले लिया, that's why that is wrong. This is B. That is -2,3. What about D? 5, -4. 5, -4. It will come here. 5, -4. ABC D. यदि हम इन सबको यदि लाइन से ज्वाइन कर दें, it will be looking like this one. ऐसा इसको इससे ज्वाइन करेंगे. अब यहाँ पे जब ज्वाइन करेंगे तो यहाँ से सीधी लाइन आएगी इसके एकदम. -2, -4. ठीक है, तो दिस कोऑर्डिनेट विल बी वेरी मच क्लियर दैट दिस इज व्हाट. ये पॉइंट आपका जो डी ई सी आएगा, डेट विल बी -2, -4. तो हम लिखेंगे फ्रॉम द ग्राफ we have coordinate of C is -2, -4. बोलिए, किसी को कोई कंफ्यूजन है इसमें? No, sir. इसको प्लॉट कर लो आप लोग, थोड़ा टाइम लगेगा प्लॉट करने में. Question number 2 of this one, 3.4. Write the coordinates of the vertices of a rectangle whose length and breadth are 5 and 3 unit respectively. इसके लेंथ और ब्रेथ आपको दिए हैं. क्या दिए हैं? लेंथ जो है 5 यूनिट है एंड ब्रेथ विल बी 3 यूनिट एंड 1 वर्टेक्स एट द ओरिजिन. एक वर्टेक्स ओरिजिन पे है, मतलब एक वर्टेक्स तो यहाँ फिक्स हो गया ओरिजिन पे, मतलब ये पॉइंट हो गया, राइट. एंड द लॉन्गर साइड लाइज ऑन एक्स एक्सिस, मतलब ये 5 वाला यहाँ पे, तो सेकंड पॉइंट विल हियर, सेकंड पॉइंट यहाँ पे होगा, राइट. यहाँ से यहाँ तक ये 5 यूनिट हो गया और ब्रेथ कितना है इसका? 3 यूनिट. तो यहाँ से ये थर्ड पॉइंट विल बी हियर एंड फोर्थ पॉइंट विल बी हियर. क्लियर है ये? सपोज दिस इज A, दिस वन इज B, दिस इज C एंड दिस इज D. ज्वाइन all these points through a line. ये लाइन से मैं ज्वाइन कर देता हूँ, you will get a rectangle. Any confusion in this one? इसके कोऑर्डिनेट आपको लिखने हैं तो लिख दो यहाँ पे. The coordinate of A is 0, 0. The coordinate of B is 5, 0. And this is 5, 3. And this is 0, 3. Hope it is clear to everyone. One of the vertices lies in the third quadrant. तो ये गलत है, एक वर्टाइस उसका थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर है. ये तो सारे के सारे फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ गए, इसलिए बोलते हैं कि क्वेश्चन पूरा पढ़ो. हमने आधा पढ़ा और बना दिया. क्या बोला गया है कि एक ओरिजिन पे है, दूसरा वाला जो है वो एक्स एक्सिस के ऊपर है, तो बी हमारा कहाँ पे आएगा?
यहाँ पे आएगा, क्लियर। और हमारा जो ये पॉइंट है यहाँ पे आएगा, एक वर्टाइसेस कितना होगा ये यहाँ पे, ये हमको नहीं बनाना है, इसको हम बी डैश ले लेते हैं, इसको हम सी डैश ले लेते हैं, ए बी, बी डैश क्यों लेंगे, इसको इरेज ही कर देते हैं जस्ट मिनट। आई एम गोइंग टू इरेज दिस वन। क्योंकि ये थर्ड क्वाड्रेंट मेंशन किया है तो ये तो पॉसिबल हो ही नहीं सकता, ठीक है स्टूडेंट्स, हमें ऑडिबल और नॉट। ये हमारा Yes, sir. ये हमारा यहाँ पे आएगा, ये सपोज सी है और ये डी है, इसको ज्वाइन करोगे आप लाइन से, तो ये ऐसे ज्वाइन हो जाएगा और ये ऐसे, क्लियर है। इसका कोऑर्डिनेट होगा आपका -5,3 एंड हियर इट इज 0,5। होप इट इज क्लियर नाउ। तो आपको क्या लिखना, राइट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द रेक्टेंगल, देयरफॉर द यहाँ पे लिखोगे देयरफॉर कोऑर्डिनेट्स of this rectangle ABCD are A का मैंने 0,0 लिया, B is 0,-5, C is -5,3 and D is 0,5। इज इट क्लियर। थर्ड क्वाड्रेंट में चाहिए था एक वर्टाइस, तो थर्ड क्वाड्रेंट में ये वर्टेक्स आ गया, अब ये क्लियर है। इसमें कोई किसी को कंफ्यूजन है तो बोलिए। इज इट क्लियर टू एवरीवन? Yes, sir. तो अब इसके बाकी के क्वेश्चन आप लोगों को खुद से करने हैं, नहीं आएगा तो कल मुझे बताना, मैं सॉल्व करवा दूंगा। इसको कंप्लीट कर लो, इसके आगे के जो भी सॉल्यूशन है, यदि आपको डाउट रहेगा तो कल मैं करवाऊंगा, अदरवाइज माय साइड दिस चैप्टर इज ओवर। ओके।